أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرضين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے ادارے کی جملہ سٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دورہ میں یعنی کہ دورہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہم جو مدنی زندگی کے تیسرے اور آخری مرحلے میں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا درس ہمیں کس چیز کی آگاہی اور کیا جائزہ ہم مختصر سا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایمان والیوں، سن 9 ہجری کے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں، اور یہ واقعات تاریخی اہمیت کے بہت زیادہ اہم ہیں جو کہ سن 9 ہجری کو پیش آئے۔ ایمان والی اس میں نمبر 1 پہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد عامر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان ہوا۔ اب یہ لعان کیا ہوتا ہے اس کی بھی وضاحت سن لیجئے۔ لعان کا مطلب کسی عدالت میں یا کسی حاکم میں مجاز کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، یا یہ بچہ یا یہ حمل اس کا نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ اب خامن کے جواب میں بیوی بھی اگر 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ جھوٹا ہے اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس کا خامن سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، ایسا کہنے سے خامن حد قذف سے بچ جائے گا اور بیوی زنا کی سزا سے بچ جائے گی۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں لعان۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پہ غامدیہ عورت کو جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کا اقرار کیا تھا، اسے رجم کیا گیا۔ اس عورت نے بچے کی پیدائش کے بعد جب دودھ چھڑا لیا تب اسے رجم کیا گیا تھا۔ تیسری چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسما نجاشی شاہ حبش نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی آپ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پائی۔ ان کی وفات کا آپ کو سخت غم ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا۔ 5ویں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ ایمان والیوں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی اور اس میں حضرت عمر فاروق کی موافقت اور تائید کرتے ہوئے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں حج کے حوالے سے جو حضرت ابو بکر صدیق کے زیر امارت تھا، اس کا معاملہ کیا ہے۔ ایمان والیوں، اسی سال ذی القعدہ یا ذی الحج سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ برات کی ابتدائی حصہ نازل ہوا جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کی برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
इस हुक्म के आ जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना फरमाया ताकि वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से इसका ऐलान कर दें। अब चलते हैं कुछ गज़वात पे भी एक मुख्तसर सी नजर मारते हैं और इसमें नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कदर बहादुर थे इसके ऊपर देखते हैं। ईमान वालियों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वात, सराया और फौजी मुहिम्मात पर एक नजर डालने के बाद कोई भी शख्स जंग के माहौल या इसके पस मंजर और पेश मंजर और आसार नताइज का जो इल्म रखता हो, ये इतराफ किए बगैर नहीं रह सकता कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े और बाकमाल फौजी कमांडर थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूझबूझ सबसे ज्यादा दुरुस्त और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरासत और बेदार मगजी सबसे ज्यादा गहरी थी। जिस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत के औसाफ में सैयदुर रसूल और आज़मुल अंबिया थे, इसी तरह फौजी क़यादत के वस्फ़ में भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यगाना रोजगार और नादर अबकारियत के मालिक थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो भी मार्का आराई की, इसके लिए ऐसे हालात और जहाद का इंतखाब फरमाया जो हज़्म तदब्बुर और हिकमत और शजात के ऐन मुताबिक थे। अब देखते हैं कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज जो वफूद दाखिल हुए थे उनका मुख्तसर जायजा। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि गज़वा फतह मक्का एक फैसला कुन मार्का था जिसने बुत परस्ती का काम तमाम कर दिया और सारे अरब के लिए हक और बातिल की पहचान वाज़े हो गई। इसकी वजह से इनके जो शुबहात जाते रहे, इसीलिए इसके बाद उन्होंने बड़ी तेज रफ्तारी से इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर बिन सलमा का बयान है कि हम लोग एक चश्मे पर आबाद थे जो लोगों की गुजरगाह थी। हमारे यहाँ काफिले गुजरा करते थे और हम उनसे पूछते थे कि लोगों क्या हाल है उस आदमी का, यानी कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या हाल है और कैसा है। लोग कहते वो समझता है कि अल्लाह ने उसे पैगंबर बनाया है, उसके पास वही भेजी जाती है, अल्लाह ने ये और ये वही की है। आगे फरमाते हैं कि मैं ये बात याद कर लेता था, गोया वो मेरे सीने में चिपक जाती थी और अरब हल्के बगोश इस्लाम होने के लिए फतेह मक्का का इंतजार कर रहे थे। कहते हैं कि इसे और इसकी कौम को पंजा आजमाई के लिए छोड़ दो, अगर वो अपनी कौम पर गालिब आ गया तो सच्चा नबी है। चुनाचे ईमान वालियों, जब मक्का फतह का वाक़या पेश आया तो हर कौम ने अपने इस्लाम के साथ मदीना की जानिब पेशरफ्त की और मेरे वालिद ने भी मेरी कौम के इस्लाम के साथ तशरीफ ले गए। और जब खिदमत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से वापस आए तो फरमाया कि मैं तुम्हारे पास खुदा की कसम एक नबी बरहक के पास से आ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फलां नमाज फलां वक्त पढ़ो, फलां नमाज फलां वक्त पढ़ो, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक आदमी अजान कहे और दूसरा कुरान जिसे ज्यादा याद हो वो इमामत करे। ईमान वालियों, इस हदीस से ये अंदाजा होता है कि फतह मक्का का जो वाक़या हालात को तब्दील करने, इस्लाम को कुव्वत बख्शने में, अहले अरब का मौक़िफ़ मुतय्यन कराने में और इस्लाम के सामने इन्हें सिपर अंदाज करने में कितने गहरे और दूध रस असरात रखता था। ये कैफियत ग़ज़वा तबूक के बाद पुख्ता से पुख्ता तर हो गई। इसलिए हम देखते हैं कि इन 2 बरसों में, यानी कि सन 9 हिजरी और सन 10 हिजरी में मदीना आने वाले वफूद का जो सिलसिला था वो काफी ज्यादा हो गया और लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज या जोक दर जोक दाखिल हो रहे थे, यहाँ तक कि वो इस्लामी लश्कर जो फतह मक्का के मौका पर 10,000 सिपा पर मुश्तमिल था, उसकी तादाद ग़ज़वा तबूक में अभी फतह मक्का में 1 साल भी पूरा नहीं गुजरा था, इतनी बढ़ गई कि वो 30,000 फौजियों के
ठाठे मारते हुए समंदर में तब्दील हो गया। फिर हम देखते हैं कि हज्जतुल वदा में देखते हैं कि 1,24,000 और याम 1,44,000 अहले इस्लाम का सैलाब उमंड पड़ा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इस तरह लब्बैक पुकारते, तकबीर कहते और तस्बीह हम्दो तस्बीह के नगमे गुनगुनाते कि आफाक गूंज उठते हैं और वादी कोसार नगमे तौहीद से मामूर हो जाते हैं। अब देखते हैं कि वो वफूद जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उनके नाम और ये अपनी तारीख में, तारीख सीयत में बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। उनके नाम आपके सामने रखते हैं। पहले नंबर पे वक्त अब्दुल कैस, दूसरे नंबर पे वक्त दाऊस, तीसरे नंबर पे फर्जवा बिन जजामी का पैगाम रसा, वफद सदा, काब बिन जहीर बिन अबी सलमा की आमद, वफद अजरा, वफद बली, वफद सकीफ, शाहान यमन का खत, वफद हमदान, वफद बनी फजारा, वफद नजरान, वफद बनी हनीफा, वफद बनी आमिर बिन सासा, वफद तजीब, वफद तई वगैरह। ये वो वक्त थे जिन्होंने इस्लाम को बड़े गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया और इसमें शमूलियत की। अब देखते हैं कि दावती कामयाबी के असरात क्या थे। ईमान वालियों, अब हम चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी अयाम के तज़किरे तक पहुंच रहे हैं, और याद रखिए कि ये मुनासिब है कि जरा ठहर कर हम इस उस जलील कदर अमल पर एक अजमाली नजर डालें जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का खुलासा है, और जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों और पैगंबरों में ये इम्तियाजी मुकाम हासिल हुआ कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर पर अव्वलीन और आखिरीन की सियादत का ताज रख दिया। ईमान वालियों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा गया कि या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमुल लैला इल्ला कलील, ए चादर पोश रात में खड़ा हो मगर थोड़ा। आगे कहा या ये कहा कि या अय्युहल मुदस्सिरु कुम फअंदिर, ए कंबल पोश, ए कंबल को ओढ़ने वाले उठ और अल्लाह और लोगों को संगीन अंजाम से डरा दे। फिर ईमान वालियों, क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और अपने कांधों पर इस रुए जमीन की सबसे बड़ी अमानत का बारगिरा उठाए मुसलसल खड़े रहे, यानी सारी इंसानियत का बोझ, सारे अकीदे का बोझ और मुख्तलिफ मैदानों में जंगो जिहाद और तंगोतास का जो बोझ है वो आपने उठाया। अब और आपके इस तबलीग की बरकत से बिखरी हुई कौमें और कबीले एक हो गए। इंसान बंदों की बंदगी से निकल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल हो गए। अब ना कोई काहिर है और ना ही कोई मकहूर, ना मालिक है ना ममलूक, ना हाकिम है ना महकूम, ना जालिम है ना मजलूम, बल्कि सारे लोग अल्लाह के बंदे और आपस में भाई भाई हो गए। एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह के अहकाम बजा लाते हैं। अल्लाह ने उनसे जाहलियत का गुरूर नखूत और बाप दादा पर फख्र का खात्मा कर दिया। अब अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई बढ़तरी ना रही थी। बढ़तरी का मयार सिर्फ और सिर्फ तकवा था। और सारे लोग आदम की औलाद, और आदम किससे बने थे? मट्टी से। ईमान वालियों, इस दावत से पहले दुनिया पर जाहलियत की कार फरमाई थी। इसका जमीर मुतफन था और इसकी रूह बदबूदार थी। कदरें और पैमाने मुख्तलिफ थे। जुल्म और गुलामी का दौर दौरा था। फाजराना खुशहाली और तबाकुन महरूमी की मौत ने दुनिया को तहबाला कर रखा था। उस पर कुफ्र गुमराही के तरीक और दबीज पर्दे पड़े हुए थे। हालांकि आसमानी मज़ाहिब और अदयान मौजूद थे, मगर इनमें तहरीफ ने जगह पा ली थी और ज़ौफ़ सरायत कर गई थी। इसकी गिरफ्त खत्म हो चुकी थी और वो महज एक बेजान और बेरूह किस्म के जामिद रस्म और रिवाज का मजमुआ
बनकर रह गए थे। ईमान वालियों, इन तब्दीलियों की बदौलत जजीरतुल अरब ने एक ऐसी बाबरकत उठान का मुशाहिदा किया जिसकी नजीर इंसानी वजूद में किसी दौर में नहीं देखी गई, और इस जजीरे की तारीख अपनी उम्र और अपनी जगाना रोजगार अयाम में इस तरह जगमगाई कि इससे पहले किसी ने जगमगाती नहीं देखी थी। ये था हमारा आज का मदनी जिंदगी का मुख्तसर सा तारुफ। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी से आगे हम बढ़ेंगे। वस्सलाम फी अमानिल्लाह।